So today, students, we will talk about your stream nomination. A lot of students were giving me many queries in the WhatsApp regarding what stream we have to choose, what are the information. So today we will just give you a brief orientation session regarding your stream nomination form. It is through this form that you will submit your stream choices to the Rainbow Public School. We had used this in last year also for your senior batch, but I want to give you one warning in this that you have to fill this with utmost caution and thorough consideration of stream, because the subject will not be changed after, if you all of a sudden you are not attending your online classes and you all of a sudden you want to change the stream. It will not happen after 6 months. Okay, today we have with us joining various class teachers and subject teachers of 12th class of all the streams. We have, let me introduce, we have Mr. Arun Kumar sir from arts stream, Arun Raturi sir, and then we have Mr. Deepak sir and Ms. Deepika ma'am from commerce stream. Also we have the teachers from PCM and PCB group, Mr. Purohit sir, Mr. Ashish Pamar and other Arun Kumar sir and others. They will be giving you a little bit brief introduction regarding your possible choices for the stream. Also, we will give you a brief overview of what are the possible career choices you will get if you opt for these subjects. Okay, students. So firstly, this is your stream nomination form. You have to fill this form, enter your correct email address, enter your name properly, and then you will see this. Please select the stream. The confirmation of stream is subject to decision by school management. It simply means if a student is too weak for the maths, on the basis of his pre-board records, on the basis of his internal gradings, we will not allow him to take a tough subject. If he is not cut out for the maths, we will recommend him commerce, and we will also recommend him some arts. Okay, so we will recommend him some other stream. We will not allow him other subject. If he's not cut out for maths and chemistry, we will not allow him to take maths and chemistry. Okay, so accordingly, we will just recommend you to take relevant stream. So you just see these are 4 streams available in your school: science A, science B, commerce, arts, and there are 4 compulsory subjects in each of these streams. You will be given no choice in the 4 subjects. You will, however, be given 2 electives to opt from. Student will have the choice to either take 5 subjects or either take 6 subjects. Okay, so for, let me tell you, for science A, which is PCM group, we will have physics, chemistry, maths, followed by English, which is compulsory. English will be compulsory. This slash Hindi, just ignore, it was last year's slide. For science B, we have physics, chemistry, biology, and English is compulsory. Similarly, for commerce, we are having accountancy, business study, and economics. English is compulsory again in this case. In arts, we will have history, geography, and economics. English is again compulsory. So 4 subjects you will have, they are fixed. English is compulsory for all. There is no choice in English. You can have choice of stream. So 3 subjects will be decided for you. For example, physics, chemistry, maths, physics, chemistry, bio, accountancy, business study, and economics, history, geography, and economics. These are pre-decided subjects. You have no choice in these stream subjects. Okay, you have the choice in electives, which is, just read, you can opt for entrepreneurship, computer science, physical education, Hindi, English, and we also have psychology as a subject. Physical education is there, psychology is there, political science is also there this year. You can just opt for these electives. But let me again give you another warning, students. If you opt for a subject, make sure make sure that it has minimum of 30 students. For example, only 2 students are opting for psychology. We will not run psychology as a subject. We will not give a teacher for psychology. Same goes for entrepreneurship or political science. If only 2 students
or only 3 students are interested, we were not going to run this because resources are not, it is not feasible to run the subject. Okay. So 4th subject, I will just modify this form. 4th subject is selected as English for everyone. You have no choice. In 5th, you can, however, this is the choice you get. In the 5th subject, you can have the choice. You can opt from entrepreneurship, economics, mathematics, physical education, home science, computer science, political science, psychology, Hindi, English. These are all available subjects for you. You can just choose from these subjects any 2 of your choice or 1 of your choice. If you have if you want to take 5 subject, you only need to make 1 choice. If you are taking 6 subject, in that case it is second elective, you can take another subject and it will be total of 6 subjects. Now let me give you some example from last year. Some students in arts stream 11th D, they had taken history, geography, economics, English, and some of them had taken mathematics. So this is a valid combination, students. If you are in arts, same thing happened with commerce, accountancy, business study, economics, English, and mathematics. Some student had taken mathematics and commerce. It is a valid combination. You are totally allowed, but we will make sure this time that on the basis of your pre-board, if you are eligible, if we find you fit to take mathematics, only then we will allow you to take mathematics. Same thing goes, you can take accountancy, business studies, and computer science or physical education, or you can take any of these subjects. Is it clear, student? So mathematics was taken even in, if you have some doubt, we will have a question answer session after the end of, towards the end of this session. Okay, so now I will just ask Mr. Arun Kumar sir. He is the class teacher for arts stream. So he will just give a brief introduction about history, geography, and other subjects in arts stream. Sir, you can just speak in my laptop. It's okay. So, no, just speak from here. Student, this is voice. Just check. Okay, student, are you able to hear me? Yes, sir. Okay, just I want to just introduce that. First of all, I just make clear about the trend over in Srinagar, that mostly students, they think that if they are taking the science as a stream, they are superb. Okay, and it is a social status. But if you just go out, Srinagar is a very small city. Okay, you now in future you have to be a global citizen, and in global world you will see that science having an importance. It is no matter, but other subject also important. Okay, and in other subject you can just accelerate yourself and you can earn as much as you are thinking about. So in other subject also. So first of all, you just realize that in which area you are having a perfection or you are good in which way. Okay, second, in means you are also assess yourself before taking any subject, that where do you have any interest. The interest is influenced by 2 things. One, from your internal thinking, and second, you are just watching other people in society. If my friend is taking science, maybe he's very perfect in taking science, in science subject, but you are influenced. You start to think that I have to take science also. Whichever language. Students, you are comfortable in English? Do you want us to speak in Hindi? Speed fast. Students? No, sir. You want us to speak in Hindi? Yes or no? They are saying yes, sir. No, they are not saying anything. Student, you want us to speak in Hindi? Aditya Kathat? Okay, sir, speak in mix. Speak mix. मेरे ख्याल से इसे जो है हाँ mix. बेटा अब तक जो मैंने आपको कहा है that is कि हम लोग जो है ना एक फैशन के चक्रों में चल रहे हैं, और ये हमेशा से जो है उत्तराखंड का एक रहा है कि वो फैशन के चक्रों में, कभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सारे होटल मैनेजमेंट की तरफ भाग रहे हैं, फिर जो है बीसीए का एक दौर आया तो सारे बीसीए कर रहे थे, फिर एक दौर ऐसा है कि सबने बीएड कर दिया,
ठीक है, फिर उसके बाद एक दौर अब जो है बीटेक का चला, तो बीटेक के पीछे भाग रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि वो लोग भी बीटेक कर रहे हैं या वो लोग भी जो है बीएड कर रहे हैं जो उसके लिए बने ही नहीं है। और जब बने ही नहीं है तो क्या होगा कि आप उसमें एक अच्छी जॉब जो है अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं, अपने आप को खो रहे हैं आप लोग। ठीक है, और जो चीज करेंगे आप फोर्सफुली करेंगे और जब फोर्सफुली होगा तो आप उसको जो है एंजॉय भी नहीं करेंगे और एक मजबूरी रहेगी, बस करना है। जहां तक मैं आपको बीटेक की बात बताता हूं, तो बीटेक करने के लिए जो है आई हैव सीन माई सेल्फ एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, दे आर जस्ट ऑफरिंग द सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ एंड पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है पीछे जॉब लेने के लिए। बट बीटेक आप ले रहे हैं तो वहां पर जो है आपका पैकेज जो है 12 लाख 14 लाख 15 20 25 लाख इस तरह का भी है। पर डिफरेंस जो है ये क्या है, डिफरेंस ये है कि आपने जो चूज किया है सब्जेक्ट, जिनको 15 16 17 लाख का पैकेज मिल रहा है, एक्चुअली वो उसी के लिए बने हुए हैं। और अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर दी है तो इसका मतलब आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी खो दी है। अब बात करता हूँ अपनी स्ट्रीम की, तो हमारे स्ट्रीम के अंदर जो आर्ट है, जिसे जो है बहुत बच्चे बोलते हैं कि ऐसी है, खासतौर पे जो है बिगड़े हुए बच्चे जो है कहते हैं चलो आर्ट्स में है, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, पास हो जाएंगे। बट जो पास होने वाले हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बात उनकी है कि जो लोग जो है बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आर्ट्स में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको सबसे आगे बढ़ने के लिए मिलती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि जो है बीटेक वाला इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कॉमर्स वाला सीए बन जाएगा। पर जब आर्ट्स में आप बहुत एक्सेलरेट करते हैं तो आप आईएएस के लिए जो है तैयार हैं, और जो ये दोनों हैं वो आपके कंट्रोल में होंगे। आपका जो है डॉक्टर भी आपके कंट्रोल में होंगे और जो सीए वगैरह हैं वो भी आपके कंट्रोल में है, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू बी अ डीएम। ठीक, तो ये जो है एक चीज है कि आप सोच कैसी रखते हैं, कितनी ऊंची सोच रखते हैं। दूसरा जो बहुत ही इस समय बहुत तेजी से फैलता हुआ एक जो साइड है, एक जो सेक्टर है, वो है जर्नलिज्म का। ठीक है, आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, काफी आगे बढ़ने के जो है चांसेस हैं। और सोसाइटी में जिस तरह से अब गड़बड़ियां चल रही हैं, तो फ्यूचर जो है लॉयर के लिए बहुत अच्छा है। आप लॉयर बन सकते हैं, वरना अंधाधुंध है। कमाई की जहां तक बात कर रहे हैं, तो लॉयर जो अच्छे लॉयर हैं, जो अच्छे जो हैं, जिनका इंटरेस्ट था और उन्होंने लॉयर किया है, दे आर चार्जिंग पर आवर। ठीक है, वो जो है ये केस के हिसाब से चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो अपने कोर्ट के अंदर कितने घंटे वो बैठते हैं उसके हिसाब से चार्ज कर रहे हैं कि हमने जो है पर आवर मेरा जो है 30,000 रुपए है, पर आवर जो है मेरा 50,000 रुपए है, इस तरह से चार्ज हो रहा है। तो ये एक जो है वो है। और बहुत अच्छा जो जो मैं आप जो कह चुका हूँ कि आप केवल श्रीनगर के अंदर ही लिमिटेड नहीं होंगे, एक ग्लोबल जो है सिटीजन बनने का प्रोसेस चल रहा है। तो आपको ग्लोबल वर्ल्ड के साथ अपने आप को अटैच करना है। तो अटैच करने में बाइलिंगुअल जो है, खासतौर पे जिन्होंने एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज या 4 लैंग्वेजेस जिनके पास आती हैं और जो सीखते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। वो आपको बीटेक या जो है आपको डॉक्टरी करने से पहले, ठीक है, जितनी मेहनत आपको उससे करनी है, उससे जो है हाफ मेहनत में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो जो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं आर्ट्स में, वो जो है जिनको जो बोलते हैं मीडियोकर बोल देते हैं, हम एक ठप्पा लगा देते हैं ये मीडियोकर है। अब मीडियोकर किस हिसाब से बोलते हैं कि ये जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, इसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है कम है। तो ऐसे मीडियोकर में हम दूसरी चीजों को भूल जाते हैं, जैसे जो है उसकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो किस तरह से बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मार्केटिंग में जो है किस तरह से अच्छा है। और ये जो मीडियोकर टाइप के लोग होते हैं, ये मार्केटिंग में बहुत अच्छा जो है करके दिखा देते हैं। तो कुल टोटल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो है इसके बारे में भी सोचें कि अलग अलग सेक्टर आपके पास हैं और आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है। आप बिना इंटरेस्ट के कोई सब्जेक्ट ना लीजिए। अगर आपके अंदर जो है किस चीज का इंटरेस्ट है, वो बात कीजिए अपने टीचर से, उन्हें बताइए मेरा इंटरेस्ट इस तरह से है, और आप अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे तो 100% है आप उस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, वहां बहुत ऊपर तक जा पाएंगे। बेटा मेरे बस इतना ही कहना है। Okay, students, very
the wise words of wisdom shared by Mr. Ratodi sir, and he has shared from his own personal experience. He has experience of 20 years in education, 24 years. 24 years in the education line, and he has dedicated, we can say, almost his lifetime for the education in the field of education. So that was his experience. Next, we will talk to Mr. Vipin Purohit. He is class teacher of 12th A, and he is the chemistry teacher. Chemistry will be taught as a common subject for PCB and PCM for 11th A, both in 11th A and 11th B, 12th A, 12th B. It will be common as a science stream. So Purohit sir will share his views on chemistry subject. साथ में I will request पुरोहित सर कि आप थोड़ा फिजिक्स मैथ्स के बारे में भी, हाँ, क्राइटेरिया भी आप बताइए जो भी इसमें रहेगा, है ना। फिजिक्स मैथ्स भी बता देना थोड़ा सा, यही से इसी में बोलिए आप। स्टूडेंट, कैन यू हियर मिस्टर पुरोहित सर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओके। सो स्टूडेंट, ज्यादा ना कहते हुए मैं सीधे यही टॉपिक पे आता हूँ कि आपको अगर साइंस स्ट्रीम लेनी है तो यू हैव नीड टू फर्स्ट क्रैक द सेट ऑफ एग्जाम। आपको एक एग्जाम दिया जाएगा जिसको आपको क्रैक करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, फिर आफ्टर दैट हम आपको स्ट्रीम प्रोवाइड करेंगे कि आप एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं, मैथ स्ट्रीम लेते हैं, या फिर बायो स्ट्रीम लेते हैं, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो। क्लियर है? जहां तक मेरे पर्सनल क्वेरीज है बच्चों, एक जो दौड़ होती है ना, जैसे बोलते हैं कि एक भेड़ सवारी होती है कि एक लाइन में भी मेरा फ्रेंड मैथ्स ले रहा है तो मैं भी मैथ्स लूंगा, मेरा फ्रेंड बायो ले रहा है तो मैं भी बायो लूंगा। आप अपने आप को खुद से देखिए कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। आप अपने पेरेंट्स से भी कन्विंस करिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में वो होता है, अच्छा लगता है, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, आप उस साइड के लिए जा सकते हो। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम में लो। हाँ, जहां तक सर अभी रतूरी सर बता रहे थे आपको बीटेक के लिए, तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि बीटेक करना गलत नहीं है, बट वो अगर आईआईटी या आइजर के इंस्टीट्यूट से हो तो। इज दैट क्लियर? Is that clear, students? Yes, sir, yes. Response सिर्फ ये अमन दे रहा रिस्पांस, बाकी स्टूडेंट नहीं है। आपको अगर बीटेक करना है तो आपको आईआईटी या आइजर, IISER, वहां से आपको बीटेक करने में ही प्रॉफिट पड़ेगा। अदरवाइज बीटेक वाले तो आप देख रहे होंगे एक गड्ढा खोद रहे 10-10 बीटेक वाले निकल रहे हैं, क्योंकि सब बीटेक करने पे लगे हुए हैं, है ना। तो मैं आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे अभी आप मेरी बात करो, मैंने जितने भी कंपटीशन दिया है बच्चों, मैंने अभी लास्ट टाइम पे पीसीएस का एग्जाम दिया था, तो उसमें टोटल जो सब्जेक्ट थे वो हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, पॉलिटिकल थी, इकोनॉमिक्स थी। और हम पढ़ते क्या है, साइंस स्ट्रीम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ते हैं। और हमें जब कंपटीशन क्लियर करना हो, इंक्लूडेड आपका एनडीए एग्जाम भी है, या आप सीडीएस भी देना चाहते हो, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एनडीए या सीडीएस देना चाहते हैं, तो हमारे पास जीएस नाम से सब्जेक्ट आता है। और जीएस में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, यही पढ़ते हैं। फिर एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया आज की डेट में, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इंक्लूड कर रखा है इसलिए। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम स्ट्रेंथ आपकी 20 क्रॉस होनी चाहिए, तभी जाके साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपका चल पाएगा। 30 क्रॉस, सर 30 क्रॉस, मिनिमम 30 स्टूडेंट होंगे, ओनली देन द न्यू सब्जेक्ट विल रन। और आज की डेट में जैसे कि आप देख भी रहोगे, लोग बहुत ज्यादा क्राइम चल रहा है, तो हमें एक साइक्रेटिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे श्रीनगर है या कोई भी आप शहर उठा दीजिए, आज साइक्रेटिस्ट के पास जाते हैं जैसे लोग, तो क्या होता है कि वो उसकी फीस बहुत हाई रहती है, क्योंकि उस फील्ड में लोग अभी कम है, उसका वो यूजी पता नहीं है लोगों को भी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ना। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम के साथ जाना चाह रहे हो तो आप साइकोलॉजी को जरूर प्रेफर करें। यदि आप साइंस स्ट्रीम में रहना चाहते हो तो आप ये देखिए बच्चों कि केवल हमें साइंस में लिटरेट नहीं होना है, we have need to educate ourselves, and there is kind difference between educated and literate. Is that clear? Are you clear, students? So I will just sir, is that all? आपको और कुछ बोलना? नहीं सर, ओनली क्राइटेरिया। आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है तो आपको क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, आप जिसमें आपका एक एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, इसमें पीसीएमबी के सारे क्वेश्चन होंगे और मेरिट बेसिस पे होगा, सीटें फिक्स हैं, इसलिए आपको वो पहले एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके आपको साइंस स्ट्रीम मिलेगी। अब प्लीज इसमें आप ऐसे अपने पेरेंट्स को लेके मत आइएगा कि मुझे मैथ्स ही चाहिए, क्योंकि हमें पता रहता है हर साल, देखो बेटा ये हर साल का यहाँ पे एक सीन बनता है कि जबरदस्ती जो स्टूडेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, जो जिनके बस की नहीं है मैथमेटिक्स,
तो वो जबरदस्ती फिर भी मैथमेटिक्स लेते हैं कि भाई हमें एनडीएन में ही रिटर्न देना है या हमें इंजीनियरिंग ही करनी है। तो एज सच ये आगे जाके तुम अपना फ्यूचर खराब करोगे या क्लास में तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 11th और 12th की मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हार्ड होती है कंपेयर टू क्लास 10th। क्लास 10th इज अ पीस ऑफ केक कंपेयर टू 11th एंड 12th। 11th 12th एकदम से ही डिफिकल्टी लेवल जंप कर जाता है, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं अगर इवन ओनली इफ यू आर एबल टू पास दिस क्राइटेरिया ओनली देन वी विल जस्ट अलाउ यू टू टेक मैथमेटिक्स। इसमें पेरेंट्स को लेके आप मत आइएगा कि हमें सर मैथ्स ही चाहिए, है ना। हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं, जबरदस्ती बच्चे ले लेते हैं, फिर वो आगे जाके 12th का रिजल्ट खराब होता है उस केस में। बाकी कॉमर्स के लिए सर मैं दीपक भंडारी सर हमारे साथ ज्वाइन हो रखे होंगे, दीपक भंडारी सर और दीपिका मैम टर्न Yes, बाय sir. टर्न। हाँ दीपक सर हमारे Yes, sir. ये हैं क्लास टीचर हैं 12th सी कॉमर्स के, ये बताएंगे कॉमर्स से रिलेटेड जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और एडिशनल इलेक्टिव्स के बारे में बताइए सर। ओवर टू मिस्टर दीपक भंडारी। Yes, sir. All teachers and students, my voice is clear to all. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Okay, bete. Okay. So firstly, I will tell you all about commerce. Okay, बेटे कॉमर्स जैसे कि आपको सब लोग बता रहे थे, सब लोग की सब लोगों ने बोला कि आर्ट्स आपका ऐसा है, ठीक है, साइंस ऐसा है। तो मैं आपको बेटा एक्चुअली एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो सब्जेक्ट ये मैटर नहीं करता है बेटे कि सब्जेक्ट कौन सा टफ है कौन सा सही है। ऑल सब्जेक्ट आर इक्वल। ओके, इट इज अप टू यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे अपने फ्यूचर कैसे डिसाइड करोगे। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे आपको सब लोग बता रहे थे कि यही टाइम आपका है कि आपने डिसाइड करके बताना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा बेटे। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये आपने डिसाइड करना है कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस। ओके, और अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो यू आर हैविंग बेसिकली यू आर लिविंग इन मॉडर्न एरा, ठीक है। 2021 ये सेंचुरी आपकी मॉडर्न एरा की है। तो कंपनीज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी। कंपनी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और इसमें आपके बहुत सारे स्कोप है, ठीक है बेटे। हर सब्जेक्ट में आपके स्कोप है एंड इन कॉमर्स ऑल्सो यू आर हैविंग सो मच स्कोप, ठीक है। आप इसमें बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है। एज अकाउंटेंट आप काम कर सकते हो, एज एचआर आप काम कर सकते हो। और गर्ल्स, बेसिकली गर्ल्स अगर किसी कंपनी में जाती है तो एज एचआर रिक्रूटमेंट वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एज अ मैनेजर, एज अ इंश्योरेंस मैनेजर आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आप इसमें एमबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली बॉयज के लिए, जिन बॉयज को ट्रैवलिंग का लगता है कि उनको ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद, तो आप इसमें ट्रैवल मैनेजमेंट टूरिज्म से एमबीए कर सकते हो। बहुत सारा आपके पास स्कोप है बेटे इसमें। ओके, सो बेसिकली दिस इज ओवरऑल पैकेज। ये आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कॉमर्स। ओके, सो इट इज अप टू यू। ऑल सब्जेक्ट आर इक्वल। ऐसा नहीं है कि बेटा साइंस टफ है, कॉमर्स आपका टफ है या आपका आर्ट्स टफ है। सब सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल है और ये आप पे डिपेंड करते हैं, आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर को कैसे डिसाइड करोगे। और इसमें आपके बेसिकली बहुत सारे स्कोप है। और वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू, इसके बाद अब जैसे ही आप 12th में अगर कॉमर्स चूज करते हो और आप 12th में जाते हो, तो 12th के अपियरिंग में आप इसमें बहुत सारे फॉर्म आप फिल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, इसमें आपका एक फॉर्म और आता है बेटा, वो है आपका कौन सा, इंडियन एयरफोर्स। ओके, उसमें आप टेक्निकल एज अगर आप कॉमर्स चूज करते हो तो एज अ नॉन टेक्निकल आप इसमें ज्वाइन करोगे एज अकाउंटेंट। ओके, फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो कॉमर्स इज बेसिकली गुड सब्जेक्ट। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपका साइंस अच्छा नहीं है या आर्ट्स अच्छा नहीं है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे हैं। बट एज अ क्लास टीचर ऑफ कॉमर्स एंड एज आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी, तो कॉमर्स आप सबके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सो आई प्रिफर ऑल द स्टूडेंट okay to choose commerce. That's all. Thank you, sir. Okay, thank you so much Deepak sir. Deepika ma'am, would you like to say something regarding accountancy? Deepika ma'am? Deepika ma'am is there? Deepak sir, is Deepika ma'am here? Okay students, we will... No sir, ma'am is not here. Okay, so students, we will just now just to give you a brief idea of how difficult each and every subject is, we will just give them the difficulty star rating out of 5. For example, we will now, sir, we are now just giving the rating on different subject ki kaun kitna tough padta hai on out of 5 star, theek hai। 5 star being very difficult and 1 star being easy। On a scale of 1 to 5, we will just for student brief understanding we will just give them। तो फिजिक्स को आप कितने स्टार देंगे पुरोहित सर? क्लास की बात हो रही, ठीक है बेटा, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल जस्ट गिव देम स्टार। वेट, okay, this is the list and
So we have our respective teachers of science who is giving physics ko. Physics is not present here. We'll just write physics, and we'll give 5 stars. These are stars of difficulty, right? Chemistry को सर बताइए. 4 star. Chemistry आसान है. Chemistry is tough. According to me, it is really tough. Then we have maths. Maths is 4 star. Maths is 4 stars. Yes, sir. इसको भी 5 स्टार, चलो 4.5 कर दो मेरी तरफ से, एक हाफ स्टार ले लो इसमें, ठीक है. एंड बायोलॉजी Biology also. कितने? Near about 4. 4 star. So we are just giving you according to teacher. This is the difficulty level of the subject. Entrepreneurship is basically you will study about the startup. Where is the startup? Arts का बताइए सर. Geography. Sir, geography. 5 स्टार में कितने स्टार देंगे? अगर किसी केवल उसी स्ट्रीम के हिसाब जल्दी से बताइए सर, 10 मिनट है. 5 साल में 5 स्टार दे दिया सर ने ज्योग्राफी. और बेसिकली पढ़ने सब पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है. और हिस्ट्री हिस्ट्री 5 शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं, 5 स्टार. और भंडारी सर अकाउंटेंसी बताइए. सर 5 स्टार अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स 5 स्टार एंड बिजनेस स्टडी 4 स्टार. बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स 5 स्टार 4 स्टार. और क्या 5 किसको दिए? इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी बोथ 5 स्टार. ठीक है, ये तो सभी टफ कर दिया आपने कि इजी सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं. यस सर. तो सब्जेक्ट एनीवेज चलो जो फिजिकल बच्चे पढ़ेंगे एजुकेशन सर में दे देता हूँ. बेसिकली उनके लिए. ठीक है, फिजिकल एजुकेशन 2 स्टार दे देता हूँ मैं, मैंने भी पढ़ रखा है फिजिकल एजुकेशन. होम साइंस विल आल्सो बी नियर अबाउट 2 स्टार. कंप्यूटर साइंस इज 4 स्टार्स. इट इज हार्ड सब्जेक्ट. पिछले साल 28 बच्चे आए थे, अभी सिर्फ 10 बच्चे बचे हैं उनमें से. ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में बहुत टफ है. पॉलिटिकल साइंस को कितने स्टार देंगे सर आप? सर पॉलिटिकल 4 स्टार. 4 स्टार है पॉलिटिकल स्टार. ये स्टार ऑफ डिफिकल्टी रेड स्टार है. साइकोलॉजी हम में से किसी ने नहीं पढ़ रखा, हम दे नहीं सकते. 5 स्टार दे दिया सर ने, मैंने नहीं पढ़ रखा बट ओके सर ने 5. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फन सब्जेक्ट, यू कैन टेक इट 3 स्टार. इकोनॉमिक्स सर ने बता दिया. और बाकी हमसे rest when you meet us we will just talk. Now it's a question answer session. Students, if you have any doubt, quickly, we have 5 minutes, quickly just ask questions. All students just interact with we have whatever teacher. Is there no artificial intelligence subject? Not as of now. We have not taken artificial intelligence. You can take computer science. You will learn programming in computer science in Python programming language. Artificial intelligence we have not yet taken as a subject. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, जल्दी जल्दी पूछो, 5 मिनट है, जल्दी जल्दी पूछो. आई विल शेयर दिस लिंक, यू हैव टू फिल दिस लिंक अकॉर्डिंगली. 46 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड ओनली आउट ऑफ 120. दिस लिंक आई विल शेयर एंड 46 में 6 मैंने एक्सक्लूड कर दिया. एग्जाम होगा? Exam as of now I don't think there are no government orders. Exam stands cancelled. लेकिन CBSE ने सब स्कूलों से ये राय मांगी है कि आपने अभी तक क्या क्या टेस्ट और पीरियोडिक टेस्ट और ये इंटरनल टेस्ट लिए हैं और प्री बोर्ड लिए हैं, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा है कि स्कूल के हिसाब से ही आप नंबर दे दो. अब तुमने कितना सीरियसली लिया प्री बोर्ड्स को वो देखेंगे, फिर नहीं तो हम एवरेज मार्क्स दे देंगे. तो हम कोशिश करेंगे सबको अच्छे नंबर मिले, लेकिन कोशिश भी वही हो पाएगी जहाँ तुमने थोड़ी कोशिश करी होगी ना, वहीं पे हम भी कोशिश कर पाएंगे. करेक्ट? तो जैसे मैथ्स बायो कॉमर्स के हिसाब से कि कौन सा सब्जेक्ट एक बच्चे के लिए सही होगा, ऐसा कोई टेस्ट हमारे पास है नहीं. तुम अपना दिमाग से इसे डिसाइड करो कि कौन सा हम फ्री ऐसा हम टेस्ट रखेंगे, तो हो सकता है पास ना हो पाओ तुम अपनी स्ट्रीम चूज करने के लिए. अभी तुम अपने घर पे कंसल्ट करके अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करो और उसके हिसाब से तुम्हें स्ट्रीम दिया जाए. लेकिन हाँ, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो के लिए तो होता है टेस्ट, क्योंकि ये हर किसी के, हम तुम्हें वही बोले भेड़ चाल में मत जाओ. भेड़ की चाल में भेड़ों की तरह
बुचर खाने में ले जाते हैं सारी भेड़ों को, है ना, कत्ल करने के लिए। तो इसलिए डोंट फॉलो द हर्ड मेंटेलिटी, हर्ड इज लेड टू द स्लॉटर हाउस। सब एक जगह जाके जा रहे हैं तो दैट इज ऑफ नो यूज। अपने दोस्ती दास्ती मत करना। मतलब वो दूसरी वाला बात ये है कि दोस्ती वगैरह भी मत देखना कि मेरा दोस्त इसमें बैठ रहा है, ये सब छूट जाएंगे वैसे भी 12th के बाद, तो अभी छोड़ दो, 10th में ही छोड़ दो, ठीक है। फिर जो ये वाला टेस्ट होगा ना, पर जैसे मैथ्स, फिजिक्स, बायो, हाँ, केमिस्ट्री, साइंस स्ट्रीम के लिए होगा टेस्ट कि भाई आप आर यू फिट फॉर साइंस स्ट्रीम और आर यू नॉट। एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क। सब मैथ्स के लिए नहीं होगा? सबके लिए होगा। पीसीएम मैं बोल तो रहा हूँ, पीसीएमबी के लिए होगा तुम्हारा टेस्ट, बाकी इनके लिए नहीं होगा। कॉमर्स और आर्ट्स के लिए नहीं है टेस्ट। तुम यहाँ पे फेल हो गए तो तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉमर्स आर्ट्स मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स पूछो कुछ। अनुराग सेमवाल, दीपांकी उनियाल, कुछ क्वेश्चन आ रहा है? हमारी क्लासेस कब से चलेंगी? तुम्हारी क्लासेस मतलब का हम इंफॉर्मेशन डाल देंगे। अभी एज ऑफ नाउ यू जस्ट डिसाइड ऑन योर स्ट्रीम्स। पहले जब तुम स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे तभी तुम्हारे कोर्सेज स्टार्ट होंगे, इसलिए ये आज तुम्हें फॉर्म दिया जा रहा है। स्ट्रीम को ढंग से इसकी डेडलाइन सर ये में फॉर्म डाल। कब मिलेगा? क्या मिलेगा? हेलो अमन सिंह, क्या पूछा तुमने? सर ये फॉर्म कब भरना है? ये फॉर्म मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैं मेल कर दूंगा, इसमें फिल कर लेना उसे, ठीक है। यस सर। और पूछो जल्दी कि आप अराउंड 4 मिनट्स स्टूडेंट्स। फिजिकल एजुकेशन में यू विल लर्न अबाउट गेम्स एंड सिंपल सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन वी जस्ट गिव यू बिकॉज इट इज इजी सब्जेक्ट, otherwise if you're interested in computer science. Okay, one more thing, you all of you have successfully wasted 1 year of your life last year in corona pandemic, and I want you not to repeat this mistake this year. So take your online classes very very seriously, and don't give excuses, don't give any, you have already wasted a lot of time. उसके बाद you will be coming back to the school, है ना। hopefully this lockdown situation will be only for some days and not for months. So whenever you come back, we will again ask you, revise you, and you will be in a tough situation. Cover करना पड़ेगा तुम्हें syllabus. So be punctual in it. Okay. I believe online classes are better than offline classes because we can share a lot of resources and material on the spot. Any other question? Ashmit, Anurag, Minni Bansal, Pranjal Sundrial, Raghav Ramola, ऋषभ, सौम्या बमराड़ा, सृष्टि जोशी, सिमरन भट्ट, विवेक राणा, जल्दी पूछो। रेज हैंड, whoever has raised hand, just ask. You're writing in chat, you are so shy. What is the criteria? Deleted portion. The deleted portion will not come in test, है ना। deleted portion पूछ रहे हैं, okay, it will not come in test. You can choose psychology in any of the streams. I have given you, you can choose any of the subject. जब भी आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे तो all 4 सब्जेक्ट आर फिक्स्ड। 5th और 6th सब्जेक्ट कुछ भी आप चूज कर लो, साइकोलॉजी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इवन कॉमर्स का तुम्हें अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ना है पीसीएम के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बिजनेस स्टडी और इंग्लिश, वो भी ले लो आप। वी विल मेक यू सिट विद कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी को हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको हिस्ट्री के वाले स्टूडेंट के साथ बिठा के हिस्ट्री भी पढ़वा देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका 5th सब्जेक्ट हिस्ट्री हो जाएगा उस केस में, ठीक है। नहीं तो अगर आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है, पीसीएम के साथ ही बोल रहा हूँ मैं, पीसीएम इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़नी है आपको तो हिस्ट्री क्लास में बिठा दिया जाएगा। आपकी सेटिंग ऐसे कर देंगे कि बाकी आप उनके साथ पढ़ो। किसके साथ? और पीसी क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। हाँ, फिजिक्स मैथ्स बायो भी हमने एक स्टूडेंट को दे रखा है, लेकिन इसके लिए हमें टॉपर स्टूडेंट चाहिए जो लोड ले ले बायोलॉजी। और देखो दोनों 5 स्टार सब्जेक्ट है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। तो इस केस में अगर तुम्हारा बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है तभी दिया जाएगा। वी हैव ओनली गिवन पीसीएमबी टू सिंगल स्टूडेंट दिस ईयर, ठीक है। वी विल नॉट गिव इट टू मेनी स्टूडेंट्स, एंड इट इज वेरी वेरी टफ। इसे हल्के में मत लेना, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स वेरी वेरी टफ 11th and 12th। लास्ट क्वेश्चन बताओ। Okay students, so that concludes our today's meeting. This is a recorded session, we will put it on YouTube also. Okay, bye, choose wisely. Thank you sir. Thank you sir.